morning, dear students. In science, today we will see chapter number 7, that is our environment. What we will learn in this chapter? First of all, we will learn about what is the term environment. Then we will see that how environment is affected, how environment affects us, and how the pollution is there in the environment, what all types of pollution are there, that all things we will see in this chapter. How we can prevent our environment, this all thing we will learn in this chapter. When we look around ourselves, we see many things around us. Either they are living things or non-living things. So, first of all, what is the term environment? Environment is everything around you. Everything. Either it is living thing or non-living thing. Everything around you, both living and non-living, makes up your environment. वो हमारा क्या बना देती है? एनवायरनमेंट. हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे आजू बाजू में जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, दैट मेक्स अप आवर एनवायरनमेंट. The environment also includes the sun and the weather of the place you live in. Natural resources and natural जो things है, like sun, weather, soil, water, these all things are also included in our environment. Okay, every living thing has its own environment. हर एक living thing को अपने अपनी खुद की एक environment होता है. Okay, here we know that plants are also living things. Okay, am I right? Plants are also living things. So plants के लिए उसका environment क्या होगा? तो कि the soil in which they are growing, water, इसको पानी जो मिलता है, sunlight है, वो अपना खाना जो बनाता है, air है, weather है, जो कुछ भी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है. Along with that, the animals who all are eating that plants, वो भी उनके environment में आ जाता है. This all things include in the plant's environment. Some of the things that make up the environment of a plant are the soil in which it grows, मिट्टी जिसमें वो grow होते हैं, water, sunlight, air, weather and the animals that eat the plants. उसके साथ animals भी plants के environment में आ गए जो उसको खाता है. These all things are included in the plants environment. As such, we are human beings. We are living in our house. तो हमारा environment, it's obvious that it is different from the animals environment. Animals, those who are living in the forest, so for them environment will be different. So for every living thing has its own environment. अपना खुद का environment हर एक living thing को होता है. Now what does our environment give us? हमारा environment हमें देता क्या है? We depend on our environment for all our needs. सारी ज़रूरतें हमारी है, उसके लिए हम लोग पूरे के पूरे हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं. What all things it gives us? It gives us food, water, air, clothing, जो मटीरियल, each and every material which we are using in our daily life, right from early in the morning after waking up we take brush in our hand, right from there we go to sleep on our bed, till that time all the things which all we are using, that directly or indirectly we are getting from the environment. Okay, the materials to build houses and all the things, if we are using brush, then it is made up of plastic, and plastic also we are getting from earth's crust. Again we are using paste is made up of herbals or herbs and some chemicals. This also we are getting from environment. Herbs means the plants, mint which is used in that paste. Again we are using water for bathing. So all the things which we are using in our day to day life, we are directly or indirectly dependent on our environment, and environment also gives us
everything which we are using. Now how do we damage our environment? हम हमारे environment को कैसे damage करते हैं? So we are living a very comfortable life. हमारे पास रहने के लिए we have built our houses, we are having good roads, cars, buses, all the luxuriness we are having in our houses. We are living a very luxurious life which has directly or indirectly damaged our environment. We are having many gadgets such as refrigerator hai, washing machine. We are using many such gadgets in our houses. However, in making our lives comfortable, we have damaged our environment. हमारी life comfortable बनाने के लिए हमने हमारा ही environment damage किया. How we have damaged our environment? That we will see in this chapter. We have dirtied our air, water and land. हमने हमारी हवा, पानी और ज़मीन को इतना प्रदूषित, इतना खराब कर दिया है, डर्टी कर दिया है. कैसे? बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू दैम. जो सारे लग्जरियस थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, वो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट इज मिक्सिंग विद द एनवायरमेंट, इट इज मिक्सिंग विद द सॉइल, वाटर और लैंड एंड इट हैज polluted it. So the addition of harmful substances in the environment, this is called the pollution. Pollution of air, water and land has harmful effects on the health of living world. जो living world है उसके ऊपर ये सारा प्रदूषण, pollution, it affects the health of living things, living world. जो living things है which are present on the earth, it affects on their health. The pollution of air, water and land affects in the health of the living things. We have cleared forests to build cities and farms. जैसे जैसे we know that before जो पूरे cities थे वो इतने सारे develop नहीं थे. Now what happens कि जो cities है it is growing and growing, growing and growing, growing and growing. How? जो forest area है, farms है, ज़मीनें हैं जिसकी, they are clearing their forest and farms. उसमें जो trees उगाए हैं they are cutting down the trees ताकि उस जगह पर नए buildings बन सके, they can make roads. तो ये सारी चीज़ों के लिए we are cutting down the trees and cities are developing. In the cities we cut down trees to make houses and roads. मकान बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हम लोग ट्रीज की कटाई करते रहते हैं. तो अभी सिटीज में बहुत ही कम ट्रीज बचे हैं. देर आर fewer trees to clean the air. हवा को क्लीन करने के लिए we know that trees are useful. बट अभी ट्रीज ही इतने कम बचे हैं और पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है. ऑल्सो ट्रीज बाइंड द सॉइल. ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं. बट जितना ट्रीज आप कट करोगे तो उतनी वो सॉइल लूज हो जाती है और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेन वाटर it is being washed out. Soil becomes loose when trees are cut. It can then be easily washed away by wind and rain. हवा तेजी से चलती है या तो रेन का पानी है उसके साथ जो फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो बह जाता है, वॉश हो जाता है. फर्टाइल सॉइल इज दस लॉस्ट. जो ऊपर का फर्टाइल लेयर है वो मिट्टी तो पूरी पानी में बह जाती है बिकॉज वी हैव कट डाउन द ट्रीज. तो ट्रीज के रूट्स जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं वो नहीं रख सकते. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन. वी हैव बिल्ड फैक्ट्रीज टू मेक थिंग्स वी यूज इन अवर एवरीडे लाइफ. हमारी एवरीडे लाइफ में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती हैं. तो वी हैव बिल्ड अप फैक्ट्रीज. Factories burn a lot of fuel and send out smoke and poisonous gases into the air.
फैक्ट्रीज में कई सारे फ्यूल बर्न होते हैं और जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है फैक्ट्रीज में से, केमिकल यूज़ करते हैं, पॉइजनस गैस निकलता है, दैट इज डायरेक्टली मिक्सिंग इनटू द एयर, वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। कार में से, कार एंड बसेस also give out smoke and poisonous gases which pollutes the air। ये जो सारा स्मोक है, व्हीकल्स में से भी स्मोक निकलता है, फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, पॉइजनस गैसेस होते हैं, ये डायरेक्टली इट इज मिक्सिंग अप विद द एयर। तो एयर भी कैसा हो गया? डर्टी। सो दैट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन विच पॉल्यूट्स द एयर। The waste from our homes and factories is thrown into rivers, seas and lakes or buried in land। जो फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलता है, या तो घर में से जो वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली वी आर थ्रोइंग इनटू रिवर्स, लेक्स या सी में थ्रो करते हैं, पानी में थ्रो कर देते हैं, या तो फिर हम लोग ज़मीन के नीचे बरी कर देते हैं, उसको खोद के ज़मीन के नीचे जो वेस्ट डाल देते हैं वो क्या करते हैं? इट पोल्यूट्स द वाटर एंड सॉइल, द डैमेज द प्लांट एंड एनिमल लिविंग देयर। पानी में हम लोग जो वेस्ट थ्रो करते हैं तो पानी में रहने वाले लिविंग थिंग्स है उसको भी डैमेज होता है, पानी के एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, एंड द थिंग्स प्लांट्स को भी डैमेज होता है बाय बरिंग द वेस्ट विच आर बरिंग इन द सॉइल। ओके, इन दिस वे वी डैमेज अवर। Now effects of air pollution. When we breathe polluted air, harmful substances enter our body and harm us. The breathing system is affected the most. जो हमने जैसे एयर पोल्यूशन हुआ है तो इफ़ वी ब्रीथ द पॉल्यूटेड एयर अगर हम ब्रीथ करते हैं देन इट एंटर्स अवर बॉडी और हमें नुकसान पहुंचाती है। एंड इसमें भी जो ब्रीथिंग सिस्टम है पूरी, इट गेट्स अफेक्टेड द मोस्ट बाय इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर। कैसे? सम फैक्ट्रीज स्पेशली पावर प्लांट्स वेयर कोल इज बर्न्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी गिव आउट सर्टेन हार्मफुल गैसेस। These gases mix with the water drops in the clouds to form dangerous substance called acid। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में जहाँ कोल बर्न होता है, फ्यूल में कोल यूज़ होता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर प्लांट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा गिव आउट हार्मफुल गैसेस एंड दैट हार्मफुल गैसेस इज मिक्सिंग विद द एयर। तो ये जो एयर है वो मिक्स हो जाती है एंड इट वी नो दैट एयर सर्कुलेट होती रहती है, इट राइजेस अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, गर्म होकर इट राइजेस अप। व्हेन इट राइजेस अप इट मिक्सेस विद द क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाता है एंड इन द क्लाउड्स दे मिक्स विद द वाटर ड्रॉप्स। ओके, व्हेन दे बिकम हैवी दे फॉल डाउन, वो मिक्स हो जाती है एंड दे फॉर्म एसिड सब्सटेंस। And the rain comes, this water drops fall to the earth as acid rain। ऐसा जो acid rain fall होता है अर्थ पे। How? Because the polluted air है, it rises up and mixes with the water drops in the clouds and it forms acid and it come down in the form of acid rain। This damages plants and buildings and affects the सॉइल। एसिड रेन की वजह से प्लांट को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को एंड सॉइल को भी। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम हाउसेस कैरीज जर्म्स। जो सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर विच इज कैरीड इन फ्रॉम आवर हाउसेस, उसको अनट्रीट किया हुआ यानी कि उसमें कुछ केमिकल डाल के उसके अंदर जो जर्म्स है वो कुछ मारे नहीं गए, वैसा का वैसा डर्टी वाटर है, उसके अंदर क्या होता है? इट कैरीज जर्म्स। ड्रिंकिंग सच वाटर कैन कॉज डेंजरस डिजीज सच एज टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री। ऐसे डेंजरस डिजीज भी हो सकती है इफ वी ड्रिंक सच पॉल्यूटेड वाटर। केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। We eat these animals or plants,
वी विल ऑल्सो फॉल इल। जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, वेस्ट निकलता है, इफ़ इट इज़ मिक्सड अप विद द रिवर्स और लेक्स के पानी में और ओशन के पानी में, इफ़ इट दिस वेस्ट इज mixed up, it affect the fish and aquatic life, either it is animal or plant, and if we eat that aquatic animals or plants, we can also fall sick. So these are the effects of water pollution. Now we will see effects of land pollution. We buy many things including food in packages, tins and jars. हम लोग ऐसा कहीं सारा खाना खरीदते हैं या वो तो फिर वो पैकेट टीन में या तो फिर जार में आता है, पैक किया हुआ है. वी थ्रो अवे द टीन्स एंड जार्स एज रबिश. हम लोग वो टीन है, जार है, प्लास्टिक पेपर है, वी थ्रो इट अवे इज फॉर्म ऑफ रबिश, वो कोई काम का नहीं है. द मोर थिंग्स वी बाय द मोर रबिश और वेस्ट वी मेक. जितना हम लोग खरीदते हैं बाहर से उतना ही हम लोग pollution, we are creating waste and rubbish. The waste often collects in dirty piles on the streets before it is removed to waste dumps. Waste dumps तक जाए, बड़े बड़े जो वेस्ट डस्टबिन तक जाए, बिफोर दैट दे आर कलेक्टेड नियर द स्ट्रीट. जो हमारे स्ट्रीट में कोने में वी कैन ऑफन सी दैट डर्टी पाइल्स, यानी कि कचरे का पूरा ढेर लगाया होता है कहीं कहीं स्ट्रीट के आगे. तो वो कचरे तक जाए उसके पहले वेस्ट इज कलेक्टेड देयर. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड दिस वेस्ट डम्प्स एंड स्प्रेड जम्प्स. वो जो डर्टी पाइल्स पूरा ढेर है कचरे का, उसके आजू बाजू में एनिमल्स इकट्ठा होते हैं, फ्लाइज है, मक्खी बैठती है, मॉस्किटोस होते हैं, विच आर द स्प्रेडर्स ऑफ जम्प्स. वो जम्प्स भी उसमें से स्प्रेड करते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वेस्ट आर वॉश्ड इनटू द सॉइल बाय रेन. वो ही वेस्ट में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है तो वो बारिश के पानी के साथ वॉश भी हो जाते हैं. दे गेट इनटू द अंडरग्राउंड वाटर एंड पॉल्यूट इट. वो अंडरग्राउंड वाटर में भी जाते हैं, सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं और पानी को भी. बर्निंग द वेस्ट पॉल्यूट्स द एयर. अगर वो ही वेस्ट को आप अगर जला देते हो, बर्न कर देते हो, देन ऑल्सो इट पॉल्यूट्स द एयर. इफ द वेस्ट इज नॉट बर्न, अगर उसको जलाते नहीं हो, देन इट स्टिंक्स. तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ दिनों के बाद वो सड़ने लगता है वेस्ट, एंड इट स्टार्ट स्टिंक्स. स्टिंक्स यानी कि उसमें से खराब स्मेल आने लगती है. टू रिमेन हेल्दी वी हैव टू डील विथ आवर वेस्ट इफेक्टिवली. अगर हमें हेल्दी रहना है, इफ़ वी डोंट हैव टू डैमेज आवर एनवायरमेंट, देन वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल वन which can deal with our environment effectively, ताकि हमें ही हमारा environment है वो नुकसान ना पहुँचा पाए. See in this pictures harmful gases causes acid rain. जो harmful gases air के साथ mix हो जाते हैं and then we are getting acid rain and the land pollution. Now we will see what is biodegradable and non-biodegradable waste. कुछ waste ऐसे होते हैं that are biodegradable and some waste are non-biodegradable. Now what is the meaning of biodegradable? Means ऐसे waste which will rot and mix with the soil. ऐसा कचरा जो थोड़े दिनों के बाद रोट हो जाता है. What is the meaning of rot? Rot यानी कि सड़ जाता है पूरा, और वो फाइनली इट मिक्सेस विद द सॉइल. बट सम वेस्ट आर सच दैट कि वो सड़ते भी नहीं हैं और सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं होते. सच वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ऑल फूड वेस्ट है, जितना खाने का फूड वेस्ट निकलता है, लीव्स है, ग्रास, फ्लावर्स, पेपर्स एंड पेंसिल के जो श्रेविंग्स होते हैं, दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल. वो कचरा जो निकलता है, जो हम लोग जब सब्जियां बनाते हैं तो उनके जो छिलके निकाल देते हैं, बनाने की पील है,
एप्पल की पील है, तो ये सारा है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वो कचरे में अगर हम डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद सड़ के वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। सो आर एनिमल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट है और एनिमल डंग भी, दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Other kinds of waste are non-biodegradable. They will not rot. This includes plastic, metal और glass. इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं वो सड़ती भी नहीं है और it finally does not mix with the soil. So they are called the non-biodegradable waste. The two kinds of waste need different kinds of treatment. ये दोनों जो कचरे है, वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट करना पड़ता है, उसके अंदर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक द एनवायरनमेंट, टू हेल्प द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हेल्प करता है। हाउ इट इज़ हेल्पिंग? इफ़ यू हैव अ गार्डन, मेक अ कंपोस्ट हीप टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज। अगर आपके पास गार्डन है, आपके घर के आजू बाजू में गार्डन है, तो उसमें कंपोस्ट हीप बना दो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट हीप? यानी कि ऐसा कचरे का ढेर बनाओ कि जिसमें आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो वहीं पे डालो और आपका जो गार्बेज है वो भी डिस्पोज हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिग अ डीप पिट एंड फिल इट विद द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा खड्डा आपको बनाना है अच्छा सा, और उसके अंदर सारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो उसके अंदर ही डालने हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कवर इट विद द सॉइल एंड लेट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रॉट फॉर अ फ्यू मंथ। उसमें कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया आपने अपने खड्डे में, फिर उसको सॉइल से कवर कर दो और कुछ महीनों तक उसको वैसे ही रहने दो। तो उसके अंदर जो आपने कचरा डाला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट विल फाइनली, वो सड़ के इट विल मिक्स विद द सॉइल, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। द गार्बेज विल डीके इन द पिट। इट कैन देन बी यूज्ड एज मैन्यूअर टू मेक द सॉइल बेटर। वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी, मैन्यूअर के फॉर्म में भी यूज़ होता है, जो सॉइल की क्वालिटी है उसको अच्छा बनाता है। इन दिस वे यू कैन यूज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू हेल्प द एनवायरनमेंट। वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प रहता है। सो इफ़ यू आर हैविंग गार्डन नियर योर होम और ओपन एरिया, देयर यू कैन मेक अ कंपोस्ट हीप। ओके, एनिमल डंग कैन बी स्प्रेड ऑन द सॉइल। एनिमल जो डंग है, काउ किक है, वो सॉइल में स्प्रेड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मैन्यूअर इन द फार्म्स। जो खेती करते हैं उनको मालूम होगा, दे आर यूजिंग एनिमल डंग टू हेल्प द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इन विलेजेस एनिमल डंग इज ऑल्सो यूज टू मेक गोबर गैस बनाते हैं एनिमल डंग से। दिस गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स। होम्स में, घरों में जो जलाते हैं फ्यूल के जैसे भी गोबर गैस से जो गैस मिलता है, दैट आर यूज्ड एज फ्यूल इन द होम्स। गांव में गोबर गैस का आपने कहीं पे देखा होगा। इफ़ यू हैव विजिटेड विलेज योर होम टाउन, देन यू कैन सी द गोबर गैस। गोबर गैस में भी सेम दे आर डूइंग, दे आर कलेक्टिंग द cow cakes, they are covering it. So from that gas is released and that is called gobar gas, and that gas is used as fuel. Old paper can be sold for recycling. Now what is the meaning of recycling? Means using the waste to make new things is called रिसाइकलिंग। वो वेस्ट हो गया बट उसको रिसाइकल करके कुछ नई चीज़ उसमें से बन सकती है, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो ओल्ड पेपर्स जो है दैट कैन बी सोल्ड फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकल्ड पेपर इज मेड फ्रॉम यूज्ड पेपर। जो रिसाइकल किए हुए पेपर है दे आर मेड फ्रॉम यूज्ड पेपर। यूज किए हुए पेपर में से बनते हैं। द पेपर इज कट अप, मेड वाइट शीट,
The used paper is cut up, made white and made into clean new sheets. If we recycle paper, we will not cut down so many trees. वेस्ट पेपर जो पेपर है, यूज्ड पेपर है, उसको प्रोसेस करके पूरा कट डाउन करके पूरा वाइट बना देते हैं. एंड फ्रॉम दैट वाइट पूरी की पूरी नई न्यू वाइट शीट्स आर मेड. एंड फ्रॉम दैट पेपर बन के जो बुक्स बनती है उसमें यूज़ होता है. तो जितना हम लोग रिसाइकल करें यूज्ड पेपर को, तो उतने नए जो पेपर्स चाहिए उसके लिए वी विल नॉट कट डाउन सो मेनी ट्रीज. जो नए पेपर बनाने में ट्रीज को कट डाउन करने पड़ते हैं वो थोड़े कम करने पड़ेंगे इफ वी आर रीयूजिंग द यूज्ड पेपर्स. इट ऑल्सो मीन्स दैट देयर विल बी लेस वेस्ट बाय लेइंग अराउंड. इससे क्या होता है, हमारे आजू बाजू में कचरा जो फैला हुआ होता है उसमें भी लेस वो कर सकते हैं हम लोग. दिस इज गुड फॉर अवर एनवायरमेंट. अ लॉट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल. ये था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं या तो फिर रिसाइकल करके नया कुछ भी बना सकते हैं. ग्लास बॉटल्स एंड जार्स कैन बी यूज्ड अगेन. जो कांच की बॉटल और जार्स, जो फूड हम लोग लेते हैं बाहर से, अगर उसमें ग्लास की बॉटल है या जार है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं इन आवर हाउसेस. मेटल कैन्स एंड ब्रोकन बॉटल्स कैन बी मेल्टेड डाउन टू मेक न्यू थिंग्स. नई चीज़ें बनाने के लिए जो मेटल के कैंस है, ग्लास अगर कोई फूट गया है तो उसमें से उसको मेल्ट करके कुछ नई चीज़ भी बन सकती है. You will sometimes find the waste collector or kabaddi wala coming to houses to buy old newspapers, cans, tins, bottles and other things. घर पे आपने देखा होगा ड्यूरिंग दिवाली टाइम यू कैन सी द वेस्ट कलेक्टर आर कमिंग इन टू आवर हाउसेस. सो यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर your mama is giving the waste, all the waste materials from your house to that waste collector or the kabaddi wala. What they are doing, they are either reusing or reselling. उसमें से कोई अगर आप नहीं चाहिए then you can give it away और you can sell it away. उसको आप बेच भी सकते हो. न्यूज़पेपर ले जाते हैं, कैन, बॉटल्स, जो कुछ भी है that they are टेकिंग अवे. अगर आपको बेचना नहीं है तो ऐसे ही आप उसको दे दो ताकि दे कैन बी रीयूज. रिसाइकल करके उसका रीयूज भी हो सकता है. बट डू नॉट थ्रो दिस अवे एंड इंक्रीज वेस्ट. वेस्ट को थ्रो ना करो बट उसको ऐसे ही दे दो सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज. ताकि जो वेस्ट है आजू बाजू में उसमें भी कमी रहे, उसको थ्रो करके वेस्ट को इंक्रीज ना करें. बट देर आर सम थिंग्स विच डू नॉट रोट एंड विच यू कैन नॉट रिसाइकल एंड रीयूज. जो ऐसे भी कई सारी चीज़ें हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो जिसका कुछ नहीं हो सकता है, या तो रिसाइकल करके रीयूज भी नहीं कर सकते एंड वंस दे आर यूज्ड वी कैन नॉट यूज इट अगेन. फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन प्लास्टिक मग. प्लास्टिक का कोई मग है वो टूट गया देन इट कैन बी यूज्ड एनी हाउ. और उसका वो सड़ के सॉइल के साथ भी मिक्स नहीं होने वाला, रिसाइकल और रीयूज भी नहीं होने वाला. दिस विल जस्ट गो टू द गार्बेज डंप. वो डायरेक्टली गार्बेज कचरे में ही जाएगा. सो व्हाट शुड यू डू, उसको आप क्या करोगे? अदर सो हो सके उतने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमें दे सके वैसी चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए सो दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द वेस्ट. ओके, हाउ कैन यू हेल्प टू प्रिवेंट अवर एनवायरमेंट? हाउ कैन वी हेल्प? स्टॉप प्लांट एंड एनिमल लाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड. प्लांट मोर ट्रीज, दे विल हेल्प टू क्लीन द एयर. जितना हो सके हमारे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना बंद कर देना चाहिए. और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो होंगे
then that will help to clean the air. उतना ही हमारे environment है वो clean रहेगा. Travel short distances on foot or on bicycle and save fuel. अगर कहीं नज़दीक जाना है, we are having legs. God has given us legs. So if the distance is short, we should go by walking or by bicycle. So that जितना हो सके we can save the fuel. पेट्रोल डीजल हम लोग उतना बचा सकते हैं. ओके. डू नॉट वेस्ट एनीथिंग. कोई भी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. मेंड, रीयूज एंड रिसाइकल वॉट एवर यू कैन. जितनी हो सके चीज़ें उसको कन्वर्ट करके रीयूज़ करो या तो फिर रिसाइकल करो ताकि उतनी वेस्ट हम लोग कम कर सकें. गिव अवे थिंग्स यू डू नॉट नीड. जो आपकी ज़रूरतें नहीं है उसको आप किसी को दे दो, फेंक ना दो ताकि चीज़ें वो वेस्ट ना हो. दिस वे फैक्ट्रीज विल हैव टू मेक फ्यूअर ऑफ दिस थिंग्स. दिस विल रिड्यूस द पॉल्यूशन कोस्ड बाय द फैक्ट्रीज. तो जितनी चीज़ें फैक्ट्रीज में बनती है तो उतनी चीज़ें कम बने और उतना ही फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन फैलाता है वो कम फैलाए. कैरी अ क्लॉथ बैग व्हेन यू गो शॉपिंग. डू नॉट टेक अ प्लास्टिक बैग फ्रॉम द शॉप. जब भी बाहर जाओ, मॉल में जाओ और इन द शॉप, यू हैव टू कैरी योर क्लॉथ बैग. कपड़े की बनी हुई बैग यू हैव टू कैरी विथ यू फॉर शॉपिंग सो दैट आपको वहाँ से प्लास्टिक की बैग खरीदने की ज़रूरत ना पड़े. रीयूज़ योर बैग्स. आपके जो बैग्स है उसका रीयूज़ करते रहो. डोंट बाय न्यू प्लास्टिक बैग्स. एवॉइड बाइंग फूड इन प्लास्टिक बैग्स और बॉक्सेस. आपके जो खाना है वो प्लास्टिक में जो पैक किया हुआ है पैकेट्स है उसको भी एवॉइड करो खरीदना. एंड बॉक्सेस में जो पैक किया गया है, avoid buying foods which are in plastic bags and boxes. So you can see, say no to plastic. Don't use plastic bags. Wherever it is possible, carry your cloth bag with you so that there does not arise a need to buy new plastic bag. Okay. So in this way we can help our environment by getting polluted. So this was all about chapter number 7. Thank you.